Hello students, today we will start with our first chapter of class 5, that is states of matter. This chapter you have already read in your class 4 also, थोड़ा बहुत आपने तब भी idea लिया होगा but बहुत general. So we will be reading a little more level of this matter only. So simply we will start with the definition. What is matter? See children, matter is anything that occupies space and has mass. Definition तो आपने देख ली, but आप अगर देखोगे तो whatever you are seeing around you, whatever object, whatever substances, whatever जो भी है आप सब देख लो अपने आसपास, सब कुछ मैटर है. whether this duster, this marker, the board, myself, the table, है ना, the podium, the mobile, the water bottle, the water in the water bottle, the cap of the water bottle, everything that is matter, even the air which is flowing around you, that is matter, which is filling in your room, that is matter. So matter is anything that occupies space and has mass. And this matter on the basis of physical state means physical properties are those properties which we can feel, touch, है ना, वो और sense, वो सब प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है. तो देखो अगर मैं यहाँ पर आपकी आंखों पे पट्टी बांध देती हूँ एंड इफ आई आस्क यू ओके टच द ग्लासेस एंड टेल मी what is the form of water in every different glass or the container. Like if in one I have placed ice cubes, in other I have placed liquid water, and in the other I have placed there is nothing, it is filled with steam. So just by judging, just by having touch, having look, भाई आंखों पे पट्टी बंदी तो लुक तो नहीं ले बट फील तो कर सकते हो. हाँ भाई ये बर्फ़ है, ये बिल्कुल ठंडा है. समथिंग इन सॉलिड फॉर्म विच इज़ वेरी कूल, समथिंग इन लिक्विड फॉर्म विच इज़ नॉर्मल, एंड समथिंग विच इज़ नीदर इन सॉलिड एंड नॉन लिक्विड बट यहाँ एयर लाइक सेंसेशन, स्टीम लाइक सेंसेशन इज देयर, वेपर. ओके, सो दैट इज द फिजिकल स्टेट. एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर कैन बी classified into three, that is mainly three: solid, liquid and gas. ये तीन states हमने matter की बताई है. तो phases of matter and state of matter is same. If you say phase or state, that is equivalent. फेज एंड स्टेट इज इक्विवेलेंट, नथिंग, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है. फेज इज फिजिकल स्टेट, स्टेट इज स्टेट ओनली. सो स्टेट ऑफ मैटर बोलो, फेजेस ऑफ मैटर बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, डोंट गेट कंफ्यूज. सो फिजिकली और बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट मैटर इज यूजुअली फाउंड इन थ्री फॉर्म्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. नाउ हाउ दीज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एग्जिस्ट, we will be studying that. What are the properties of solids? How we will identify whether the substance is solid, whether the substance is liquid, or whether the substance is in gaseous form. And also we will be reading about change of state of matter. See, if you are subjecting any substance with pressure or temperature, increase करते हो, decrease करते हो, कुछ भी करते हो, there is change in the temperature of the pressure in the physical state, there will be change in the physical state. The physical state will change. And how it will change? See, if we are talking about solid, when solid is converted into liquid, that process is known as, solid is converted into liquid, that process is known as melting. इंटर कन्वर्जन हो गया. अब यही लिक्विड अगर वापस से सॉलिडिफाई होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग. सो दिस इज इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. If we are talking about liquid when changes into gas, that process is known as evaporation or vaporization. Evaporation or vaporization. And gas on condensation gets back into the liquid form, right? So this is interconversion. Again, one more is there. See, 4 processes we have done. Solid sometimes changes into gas directly, and that process is known as sublimation.
दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। जब आप घर पे कपूर होता है या फिनाइल की जो टैबलेट्स होती हैं विच आर बीइंग पुट इन दी वुलन क्लोथ्स, और नैप्थलीन बॉल्स भी जिनको बोला जाता है, सो दे आर सब्जेक्टेड टू सब्लिमेशन, दे चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस फॉर्म डायरेक्टली एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। और अगर रिवर्स प्रोसेस होता है तो दैट इज डीसब्लिमेशन, दैट इज डीसब्लिमेशन। क्लियर है? ठीक है। सो दिस इज हाउ दीज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट phases of matter or interconversion of matter takes place. Now we will be studying about solid, liquid and gas. इनमें ऐसा क्या होता है, हम identify कैसे करेंगे, what are the peculiar feature, what are the characteristics. Okay, so if you want to write, you can write and then I'll rub this, and on the basis of some properties and some characteristics we will be identifying solid, liquid and gas. So if we talk about solid, liquid and gas, how you will identify? See, in case of solid, if we are talking about solid, they have shape. So fixed shape and फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम भी फिक्स होती है, वॉल्यूम मतलब स्पेस बीइंग ऑक्यूपाइड। लाइक ये जो डस्टर है, मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ, तो ऐसा तो है नहीं है कि अभी ये इतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है जितनी भी कर रहा है, कल ज़्यादा करेगा और परसों उससे भी ज़्यादा करेगा, या कल कम करेगा और परसों उससे भी कम करेगा, नहीं। वट एवर शेप इज गिवन टू इट, according to that shape the volume is also fixed for an object, a solid object, and that much volume, that much space it will take. So solids have fixed shape and fixed volume, and that fixed shape and fixed volume is because of the packing. Packing means the arrangement of the particles, arrangement of the molecules in solid. Solid के जो particles होते हैं they are arranged in the tightly compact form, बिल्कुल tightly compacted होते हैं, कोई स्पेस नहीं होती है इनके बीच में। देख रहे हैं आप लोग? इट्स लाइक दिस। सो दे डू नॉट हैव एनी स्पेस, दे आर टाइटली पैक्ड, राइट? सो दैट इज वाई इनका फिक्स शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अब अगर हम यहाँ पर जाते हैं, इन केस ऑफ लिक्विड, देन लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विड के केस में क्या होगा? दे टेक्स द शेप of the container but have fixed volume. इनकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स होगी हमेशा। ऐसा नहीं है कि स्पेस कितनी भी ऑक्यूपाई कर लेगा, पूरा जार फिल हो जाएगा, आपने 20 ml लिक्विड डाला तभी भी, नो। इफ द कैपेसिटी ऑफ द जार इज 100 ml, you are filling 20 ml, it will get to 20 ml only. If you will increase the volume, it will increase the amount, volume will increase, and maximum you can increase till 100 milliliter depending on the type of container. So volume is fixed, volume fix होगा, बट शेप नहीं। शेप अगर फ्लास्क में डालोगे फ्लास्क जैसा शेप आ जाएगा, सिलेंड्रिकल ग्लास में डालोगे सिलेंडर जैसा शेप आ जाएगा, तो डिपेंड्स। बॉटल में डालोगे तो जैसे भी बॉटल का शेप है वैसा बॉटल का उसका वाटर का शेप हो जाएगा, या लिक्विड का शेप हो जाएगा। वी आर नॉट टॉकिंग, वी आर नॉट स्टिकिंग टू द वाटर, वी कैन टेक वाटर एज एन एग्जाम्पल। ओके, सो इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर एंड do not have fixed volume. And if we are talking about the arrangement of the particles of liquid is in this manner, they have intermolecular spaces, अभी बताऊंगी होती क्या है, and the particles are continuously moving here and their random movement is continuous in case of liquid. And if we talk about gases, no shape, no fixed shape, कोई शेप ही नहीं है, कैसे बताओगे आप? पूरा कितना भी हो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रूम आई एम स्टैंडिंग, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रूम वेयर यू आर स्टडिंग, you are listening to this lecture, you will find that air in your room, wherever it is getting space, even the tiny one, there is air. The glass which is empty for you,
which your mom is, suppose you ask your mom to give you a glass of water and she gives you and you finish the glass of water, you drink whole water and you keep it. Now you will say the glass is empty, but being a chemistry student you should not say that that is an empty, that is filled with air. Air is always there in that. As soon as water will finish, air will come and occupy the space. Okay, so no fixed shape, no fixed volume, and the particles are random and they are moving here and there. You cannot make them fix. Very far away from each other and highly energetic, moving here and there. Next is intermolecular space. If we talk about intermolecular space, अगर हम intermolecular space की बात करें बच्चों, तो intermolecular space दो मॉलिक्यूल के बीच की स्पेस, वो स्पेस सॉलिड में तो है ही नहीं. आप देखो, no intermolecular space. So intermolecular space is absent or negligible. Negligible means not countable. नेग्लिजिबल और नॉट काउंटेबल, जिसको हम मतलब ना के बराबर है, काउंट करें ना करें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, स्पेस है भी तो. जनरली तो कोई स्पेस सॉलिड्स में नहीं होता. टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, तो यहाँ की हम बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. आई एम राइटिंग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मोर देन सॉलिड बट लेस देन लिक्विड, सॉरी गैसेस. गैसेस के कंपैरिजन में यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर लेस है, लेकिन सॉलिड से ज़्यादा है. दे आर लिटिल मोर फार फ्रॉम ईच अदर. दे हैव इनफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. अनदर मॉलिक्यूल कैन कम एंड गो एंड एडजस्ट इन द spaces present in between the liquid particle, and that is why you can dissolve sugar and salt in water. If we talk about intermolecular spaces in case of gases, then intermolecular spaces are maximum, सबसे ज़्यादा होती है. जैसे यहाँ एब्सेंट होती है, यहाँ के बराबर नहीं होती, वहाँ मैक्सिमम होती है, और यहाँ मीडियम मॉडरेट. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इफ विल से देन दैट इज फ्लो. मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव और फ्लो. इसीलिए दे हैव रिजिड शेप, they are compact, they have fixed shape, you cannot distort them easily. If we talk about liquid, then molecules can flow. और यही रीज़न है कि यहाँ पर इनका फिक्स शेप नहीं होता, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इधर उधर जा रहे हैं तो आप उनको बांध के नहीं रख पाते हो, तो शेप फिक्स नहीं है. शेप उसका ले लेंगे, वॉल्यूम फिक्स है, जगह कितनी ऑक्यूपाई करेंगे, बट उसी जगह में वो रैंडम मूवमेंट करते रहेंगे, एंड दैट इज वाई दे आर इन द लिक्विड स्टेट. इफ वी टॉक अबाउट मैक्सिमम फ्लो, इसका सबसे सिंपल से एग्जाम्पल, इफ यू सी देन व्हेनेवर यू गेट अ परफ्यूम, अब बहुत थोड़ा सा परफ्यूम भी आप प्रेस करते हो, मान लो कि आपकी मम्मी ने मना किया मेरा परफ्यूम में लगाना नहीं, और आपने लगा लिया चुपके से, सोचोगे मम्मी को कैसे पता पड़ेगा, बट फिर भी मम्मी को पता पड़ जाता है, क्योंकि उसकी खुशबू, और खुशबू कैसे फैली, बाय द प्रोसेस, बिकॉज वो गैस है. लिक्विड होता है, जैसे उसको आप प्रेस करते हो वो लिक्विड के वेपराइज होके आ जाएगा, और वो वेपर्स यानी कि गैस की फॉर्म में आ गया तो सब जगह फैल जाएंगे. दे आर सेंटेड मॉलिक्यूल्स, तो सेंटेड है, खुशबू है, आपकी मम्मी किचन में भी है तभी भी समझ में आ जाएगा. एंड दिस शोज कि इसमें कितना फ्लो होता है, मैक्सिमम है, विद इन सेकेंड्स इट विल फ्लो. आप यहाँ वाटर डालोगे, उस कोने तक जाने में बहुत टाइम लगेगा, है ना, डिपेंड करेगा, अपना फ्लो निकालेगा, बट चला जाएगा. सॉलिड तो यहीं रह जाएगा, उसको तो धक्का मार मार के ले जाना पड़ेगा किसी और जगह, बट गैसेस को आप कुछ मत करो, रिलीज करो, इट विल फ्लो इवेंचुअली. So this shows that it is having maximum flow, and that is why no shape and no volume. And if we are talking about packing, these are tightly packed molecules, having tightly packed molecules. In case of these, loosely packed, or you can say more loosely packed than solids, and very loosely packed, very loosely packed. Right. Then if we are talking about energy, see, every particle, whether solid or liquid or gas, they are having energy.
पार्टिकल इज हैविंग एनर्जी। आप में भी, आप बैठे हो तो क्या हो गया, एनर्जेटिक तो हो। अगर आपसे मैं बोलूँ दौड़ लगाने जाओ तो आप चले जा सकते हो। उसी तरह से हर पार्टिकल के पास एनर्जी होती है। किस तरीके की एनर्जी है, मिनिमम है, मैक्सिमम है। मिनिमम होगी तो सॉलिड में आ जाएगा, मैक्सिमम होगी तो गैस बन जाएगा, इधर घूमेगा उधर घूमेगा, है ना। सो दैट शोज द मूवमेंट, मैक्सिमम एनर्जी वाला मूवमेंट शो करेगा। दैट इज वाई अगर हम यहाँ बात करें, एनर्जी इज मिनिमम इन द पार्टिकल्स ऑफ solid, moderate energy more than solid, less than liquid, sorry, gases. And if we are talking about gases, maximum energy between the or among the particles of gas, they are having maximum energy, बहुत ज़्यादा energetic होते हैं। that is why the flow is very fast, that is why diffusion process is there, that is why you can smell the things। आपके घर में खाना बन रहा होता है किचन में और पूरे घर में खुशबू आती है, क्या बन रहा है, you can identify easily। तो खुशबू आई है, खुशबू मतलब क्या, वेपराइज, लिक्विड फैला नहीं होता कि सारे घर में राजमा फैल गया तो राजमे की खुशबू आ रही ना, बन रहा है एक जगह बट वेपराइज हो रहा है ना, वो स्पाइसेस, सबका फ्रेग्रेंस है, सबका स्मेल, अरोमा, तो दैट अरोमा इज स्प्रेड ऑल अराउंड द प्लेस एंड दैट इज बिकॉज दैट इज इन द गैसियस फॉर्म, राइट। सो दिस वाज अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, हाउ दीज बिहेव इन डिफरेंट मैनर। अब हमने आज ये सारा कुछ किया। इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वॉट दिस मैटर। हमने ये तो देख लिया कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, बट सॉलिड भी किससे बना है, लिक्विड भी किससे बना है, कि सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज हो जाता है, तो पार्टिकल्स में ऐसा क्या आ जाता है, पार्टिकल है क्या। सो वी विल बी रीडिंग अबाउट एटम्स, वी विल बी रीडिंग अबाउट मॉलिक्यूल्स, हाउ दीज मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन मैटर, ओके। सो दिस वॉज अबाउट टुडेज क्लास, थैंक यू।